नमस्ते, आदाब, सदाबहार। और आकाश जैन भी हैं। अच्छा सॉरी, आकाश जैन भी हैं आज हमारे साथ। आज इट्स पॉडकास्ट डे 2, like after a week almost. Yeah, we were discussing the topic for today's podcast, but I don't think so we are like have read enough in our life to talk about anything. बट या आज हम ठीक है, आज हम एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ किताबों पे बात करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू गाइज रीड टू much. I don't know, except like I don't know. Okay. So Mr. Akash Jain, let's make fun of people who don't read and who read also like at the same time. So Akash Jain, like any book have you read like which is like which changed your life or changed your perception about, I don't know, reading books? So like do you like reading in general, like newspaper or I don't fucking care यार, नहीं अच्छा, you don't care about reading. yeah. But have you read any books that you like at least top 3 or something? top 2 भी चलेगा. पता नहीं यार, वो कुछ ऐसे बुक्स कभी आए ऐसे, मतलब आई मीन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि टाइम फ्रेम के बीच में कुछ आपके बुक्स जंप इन कर जाते हैं, तो वो जब पढ़ जाते हैं. बट अदरवाइज ऐसे रीडिंग आई डोंट फकिंग केयर के. अच्छा, I read this funny a lot of time. नहीं यार. अच्छा, I read this funny thing कि reading books and buying books are like two different hobbies. So what do you have to say about that? Buying books, yeah, definitely. I mean, being a graphic designer, I would say buy lot more books because यार covers पे काफ़ी मतलब मसाला होता है, मज़ा आता है. मतलब जो बनाते हैं वो भी काफ़ी मज़ा आता है. तो यार ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, आई वुड से मोर ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन काइंड ऑफ. आई मीन आपके विस्की जहाँ आप पीते हो, मे बी वहाँ पर आपके बुक्स होंगे तो आपको मे बी ज़्यादा क्लासिक फील होगा. कोई लड़की को डेट पे लाया, बोला लाइक लुक एट माय लाइब्रेरी, नाउ हैव सेक्स विद मी. या मैन, बट ठीक है यार, बाय बुक्स. Buy books, like that's what you'll say. Like what do you think are the like positive sides of buying books, or I mean in general reading them? Like what are the advantages of I'm like I'll say self reading. I'll say, yeah, this is the part I want to focus about. Self reading, like I don't know if it's called self reading or not. Like when you try to read on yourself, like nobody tells you to. I mean, is there any other way, bro? नहीं, like for school में हम लोग बोलते थे ना कि पढ़ने के लिए एग्जाम करना है या जो भी है टेस्ट में आने वाला है, तो that's why you read book. या टीचर ने पढ़ा दिया, so you have to memorize it. That's why, मतलब बचपन में at least 12th standard तक तो we used to read books because like it was in a chapter and course. आपको पढ़ना ही था, compulsory है, you have to memorize that. But even like we both must have noticed कि school के बाद when you start reading things, you like kind of become primal आदिवासी type. You suddenly you like lost your sense of reading. I don't know, it happens with you like after 12th standard. थोड़ा टाइम के लिए, like before engineering start even, उसके बीच में अगर आप कुछ पढ़ने की कोशिश करो, like जैसे आपने बोर्ड्स दिए, रिजल्ट नहीं आया और क्या कहते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो भी एग्जाम दिया, जो भी उसके बीच में जो फ्रेम होता है, जब बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो नोबडी इज एबल टू रीड, लाइक अनलेस इट्स अ हॉबी और समथिंग. ओनली गर्ल्स रीड आल्सो. गर्ल्स रीड, यार थोड़ा सा ऑड लगता है वो कि यार आप मतलब ऐसे बुक लेके बैठे हो. आई मीन वो थोड़ा सा या जेस्चर जरूर ऑड है यार, वो बुक पकड़ के. that used to look gay when you're in school and some guys reading all by himself. specs पहनते हो तो फिर तो और मतलब ऐसा नर्डी हो जाता है, pretentious हो जाता है. बट दैट्स व्हाई पता नहीं, मैं तभी बोल रहा हूँ आई हेट रीडिंग बुक्स. मैं उसके लिए टाइम निकाल के फुल पावर पढ़ रहे हैं. नहीं, दैट्स नॉट इट. टाइम कम्स कि यार कभी कभी कोई बुक या फिर कभी कभी कोई कवर बहुत क्रेजी लग जाता है, तो somehow हाँ लैपटॉप के बीच में रखा हुआ है. अच्छा. कहीं तो मतलब साथ चल रहा है आपके वो बुक. happens. And any book that you would maybe recommend to anyone कि definitely read this book, like नहीं for some reason? नहीं यार, I don't know. You should read this book. First of all एक चीज़ एक्सेप्ट करूँगा, मुझे बुक्स पढ़ने के बाद डेफिनेटली फिर से मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि यार ओ फक यार ये कुछ नया है. कौन सी बुक्स पढ़ने के बाद? कोई भी बुक पढ़ता हूँ ऐसे, तो बेसिकली वो जोन क्रिएट होता है बुक पढ़ते टाइम, एंजॉय करता हूँ, और फिर उसके बाद वो बुक वापस बंद हो जाती है. मतलब उसके बाद फिर से पढ़ने कभी बैठा तो शायद लगेगा कि हाँ अच्छा. बट ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता बुक से कुछ नॉलेज. How many books have you finished like 0 to 100% पूरा पढ़ा है? Many. कुछ like can you name any? I would say graphic novels are easy to read.
0 to पूरा end. Yeah, 0 to 100 definitely. मतलब In you one want go, pictures, even not yeah, like binge watch, binge read you can. Any books have you read like जिसमें सिर्फ टेक्स्ट था शुरू से लास्ट तक? Yeah, कौन many सी? books. But again वो थोड़ा सा फिर क्या बोलेंगे, थोड़े से टॉपिक्स ऐसे हैं वो मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, वो थोड़े से इंट्रीगिंग ऐसे हैं कि यार वो पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगने लगता है कि फक हाँ यार ये सही नेक्स्ट लेवल साईफाई, अच्छा तूने साईफाई से हटके कुछ ऐसा स्टफ आ रहा है. अच्छा इकिगाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप कुछ? हाउ इज इकिगाई? वो नहीं है यार, वो आई थिंक दैट्स नॉट अ बुक, दैट्स हाँ. दैट्स समथिंग कि यार वो ठीक है, अगेन वही आपकी लाइफ में बीच में आएगा कभी से. Like you finished Ikigai, end तक आई खत्म फिनिश्ड की थी? इकिगाई, आई इवन अच्छा. आई प्रैक्टिस इकिगाई. ओके. सो पहले भी करता था, बुक पढ़ी, फिर उसके बाद भी करता हूँ, तो वो ठीक है. वो बुक यूजुअली आती नहीं है लोगों की लाइफ में, तो आनी चाहिए. जरूरत नहीं है ऐसा फिक्स जरूरत करते नहीं है, हैं, हाँ क्या जरूरत करना नहीं है? है. फिर इट्स द अगर फ्लो जो सब उसमें चल ही रहे हैं. अच्छा. अरे तो हमारे तरुण भाई साहब तो लिखते हैं, आई डोंट नो उनको टाइम नहीं लगता होगा पढ़ने का. बट कुछ तो पढ़ते रहते हैं. अभी फोन में भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं. लिखते हैं आप? क्या देख रहे हैं? क्या लिखा आपने? चलो तस्वीरें पढ़ते हैं, तस्वीरें पढ़ते हैं, ये बोल सकते हैं आप. तस्वीरें तो पढ़ते होंगे आप, तस्वीरें देखते बहुत हो. कितना beautiful. जो मन करता है वो पढ़ लेते हैं. पर मन में फिर कुछ उसमें अच्छा भी लगता होगा कि सिर्फ पढ़ते हैं, जो मतलब सिर्फ पढ़ना ही गोल है. पढ़ लिया बहुत है. अच्छा, फिर उसके बाद ओपिनियन बनाना कोई ऐसा कुछ नहीं कि दिमाग में. creative काम नहीं है अभी. अच्छा, ये पढ़ लिया, इसको हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं, कभी काम आएगा बता देंगे पुलिस के सामने. सही है. आप तो बताइए, आप तो आपकी किताब आने वाली है, उसको उसकी पिछले महीने हमने बात की थी. हाँ, पिछले महीने अपन ने बात की थी. काफी कुछ चल रही है. आप थोड़े लॉन्च होने वाली है. हाँ, आप अभी बीच में बंद हुए थे काफी. आग नहीं इकट्ठा कर पा रहे ज्यादा उसमें लॉन्च करने के लिए. आग कम पड़ रही है. कब पड़ रही है, थोड़ी सी ठंडे हो जाते हैं जल्दी. कह रहे तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा. डर से स्ट्रेटोस्फीयर पार नहीं कर पाएगा ये तो. डर से जाते हैं. कोई बात नहीं, अभी नए नए आए हैं डिजाइन में. कैसा लग रहा है? बहुत बुरा. अरे यार, हाँ, वो पिछली बार भी बोला था, कुछ पैसे वैसे कुछ कह रहे थे आप. ये तो जल्दी रियलाइज कर गए यार. बहुत बुरा. बहुत बुरा कि ये भाई साहब को कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा. बट फिर भी आपको कुछ पढ़ना. अच्छा, आप मैगजीन पढ़ते होंगे, कुछ तो पढ़ते होंगे कि मतलब क्या कुछ पढ़ने में क्या बोलेंगे आप? पढ़ते ही नहीं है मतलब, पसंद ही नहीं है? पढ़ना छोड़ दिया. पढ़ना छोड़ दिया. वैसे ही कह रहा हूँ मैं, वैसे स्कूल के बाद फेज आता है ना, पढ़ने का मन ही नहीं करता आपका अचानक से. अरे अब तो स्कूल खत्म हो गया है, तो कौन पढ़ने का? अब यार तो सब. तू क्या बोलता है यार, तेरे को बुक्स पसंद है क्या? हाँ, मुझे बहुत पसंद है भाई. मैंने सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग, मैंने जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है उतनी ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी है लाइफ में. मतलब ऐसा सीन है, मैं कुछ भी मिला, मतलब मैगजीन जो मिला, कॉमिक्स मिल गई, वो गई. जितना ट्रैवल किया तो या तो मैं सो रहा हूँ ट्रैवलिंग. हाँ, ये या तो मैं पढ़ ट्रैवलिंग रहा तो हूँ. बहुत सही है. ट्रैवलिंग का यार वो मतलब स्पेशली बस ट्रेन में आप कुछ ट्रेन नहीं में कर सकते. स्पेशली ट्रेन में, You are फ्लाइट में भी traveling. शायद से ना पढ़ पाऊँ, बट ट्रेन में सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया मैंने. सब ट्रेन में तो आपके पास टाइम ही टाइम है. टाइम जब ही टाइम है यार, सिर्फ सुसु करने जाना है. तो आप किताबें पढ़ रहे हो. फ़ोन तो अभी है हमारे पास, तो हाँ. उसमें भी सिग्नल नहीं लगता कई बार ट्रेन चलती है तो. नहीं तो फोन में ही पढ़ ली मैंने. फोन में पढ़ी एक बार ट्रेन में बुक, वैसे एक दो बार कोई बहुत अच्छी बुक मिल गई थी मेरे को. यार ट्रेन में लेकिन यार बाहर कभी कभी क्रेजी तरीके से घूरने में भी बहुत मजा आता है. कुछ इंटरेस्ट नहीं है मुझे. मैंने ट्रेन में लोग थोड़ा ऑडली देखते हैं कि क्या हो गया, थोड़ा सा इसको रिटार्ड है क्या. नहीं भाई, लोग तो बहुत इज्जत से मैं तो देखा, जैसे ही मैं ट्रेन में बैठता हूँ मैं सब रखूंगा, अपने शूज उतारूंगा, बढ़िया चप्पल में शिफ्ट हो जाऊंगा. मतलब अच्छे घर के लड़के होते हैं जैसा, सब ठीक ठाक देख लिया, कोई किसी को दिक्कत नहीं, मेरा बैग रख दिया मैंने. उसके बाद में किताब निकल के ऐसा बैठ जाता है. हेलो अंकल. तो मैं किताब लेके ट्रेन में. हाँ नहीं, मेरी तो ये ट्रिक नहीं बोलूंगा, मेरे को ये अच्छा लगता है. ट्रेन में घुसते ही मैं आके ऐसा बैठूंगा, तब सबसे पहले शूज उतारे. ट्रेन में शूज पहन के पक्का जाना है, मेरे को पता है चप्पल पहन के जा सकता हूँ, और शूज पहन के जाना था कि लोगों को लगे कि नहीं ये इनकी मजबूरी थी इसलिए ट्रेन से आ रहे हैं. रोज आते हैं रोज इनको वैसे तो मैं फ्लाइट से जा रहा था, वैसा हो गया था. वैसे तो मैं फ्लाइट से जाने वाला था. नहीं यार, तो वो लोग फिर जूते वूते थोड़ी उतारेंगे पागल क्या. नहीं मतलब शूज में आपका पूरा अटायर अच्छा लगता है कि आप थोड़ा कुछ काम से जा रहे वो हो. तो वैसे फुल अरे पावर यार नहीं जूते हो. के साथ पूरा टॉप वाले बर्थ पे सो रहे तो हैं. ट्रेन पे जाके नहीं, मेरी मतलब हमेशा इनफैक्ट कभी मेरे बैग के अंदर भी बुक नहीं रहती. जब भी मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ मेरे हाथ पे या कहीं तो ऐसे लटक रही होगी पीछे बुक साइड में दिख रही है. फर्स्ट इंप्रेशन है. आज से काला जादू पड़ रहा है. नहीं यार, ये मेरे साथ भी हुआ. कुछ तो क्रेजी कवर्स आप कुछ तो पढ़ रहे हो, मतलब आप ट्रेन में जो पढ़ रहे हो. जनरल डब्बा होता है ना, हाँ, उसमें हाँ, आती है हाँ. बहुत क्रेजी बुक्स, काला जादू सीखने की किताबें. नहीं इनफैक्ट आप अपनी बुक के कुछ कभी, मैं जैसे मैट ग्राफिक्स बहुत फॉलो करता हूँ, तो कुछ ऐसी बुक मैंने परचेज की जिसमें बहुत ही क्रेजी बिजार ग्राफिक्स है. मतलब
इनफैक्ट न्यूडिटी है, तो हाँ। यार अभी वो पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा कुछ तो मतलब वाइब्स ऐसा आती रहती है कि यार कोई तो जज कर रहा है आसपास नहीं यार। लेकिन बुक्स पे बैन लगाने वालों पे मैं तो यही बोलना चाहूँगा, लाइक काफ़ी लोग होते हैं जिनको कुछ बुक्स में कुछ पसंद नहीं आता, लाइक स्पेशली पिक्चर्स या पोर्नोग्राफी पसंद नहीं आती कह सकते हैं। तो इस पे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बुक्स शुड लिबरेट यू, जैसा कहते हैं आप जो नहीं कर सकते हो, जो क्राइम है पेजेस है जो क्या लिबरेट करेगा, लिबरेट इन द सेंस नहीं, मतलब। लिबरेट वैसा नहीं, लिबरेट मतलब आपको उस थॉट से भी करा दिया वाकिफ कि हाँ चलो एक ये भी रियलिटी हो सकती है, चाहे वो नहीं भी आप चाहते हो। बट जैसे अनुराग कश्यप की मूवीज हम देखते हैं तो बहुत बुरी चीजें दिखती है, बट हम चाहते नहीं, बट हम एंजॉय करते हैं एंजॉय करते हैं कि अरे मर्डर होता है, ये होता है, अपने साथ नहीं होता यार। लेकिन ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ते हो क्या कोई ऐसा? मैं पढ़ता हूँ ना, ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ी है कैसे, मैंने। क्या है मतलब, क्या एक्सपीरियंस है यार? फुल पढ़ने ही नहीं रहता यार, बहुत क्रेजी चीज ग्राफिक नॉवल तो बचपन से पढ़ी है भाई, मैं तो स्कूल लाइब्रेरी में ग्राफिक नॉवेल्स ही पढ़ी है सिर्फ। वो एक तो हार्डी बॉयज रहती थी, हाँ। उसमें भी ग्राफिक नॉवल कम होगा, ग्राफिक नॉवल वाली इसके आती थी इंडियन जितनी भी माइथोलॉजी की स्टोरीज हैं। तो मेरे स्कूल में एक पूरा सीयर आई डोंट नो उसका पब्लिकेशन का नाम भूल गया, तो वो कॉमिक्स जैसा ही प्रॉपर जैसे आती हैं, अच्छी खासी मतलब 60 से 100 पेज 30 पेज की भी हो सकती है, इतनी छोटी वाली वर्जन भी उसमें। किसी में महाभारत के सिर्फ कोई एक कैरेक्टर जिसका आपको नाम नहीं पता, उसकी स्टोरी है बस इतनी सी बुक में, छोटी कॉमिक साइज में। अगर बड़ा कैरेक्टर है या सिर्फ अर्जुन की कहानी है तो एक बुक में सिर्फ वो है, उसकी स्टोरीज है, भीष्म की स्टोरीज है, एक में कोई एक इंस्टेंस है बस, जैसे कोई वो कौन सा कांड होता है, सुंदर कांड या ऐसे कांड जैसे होता है ना, छोटे छोटे स्टोरी के पार्ट्स हैं जिसमें बटी हुई है महाभारत या रामायण, तो वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ी है मैंने। तो उसमें बहुत कूल लगता था, सिर्फ ग्राफिक नॉवेल्स ही हैं वो सारी। उसमें हिंदू वर्ड बहुत इंग्लिश में यूज़ किए हैं, जैसे अलास करके, या बून मतलब वरदान तो इंग्लिश में पढ़ के साइंस इज अ बून और अ बेन और ऐसा। लेकिन ये मैं बोलूँगा हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो इंग्लिश में थी सारी इंग्लिश में थी वो, तो स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत होती। लेकिन लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा वही टाइम दिया मैंने अपने स्कूल लाइब्रेरी जितने भी पीरियड्स होते थे, कि एक अच्छी बुक पढ़ते हैं। बकचोदी तो लाइब्रेरी पीरियड में बकचोदी नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि शांत बैठना पड़ता है। हाँ शांत। म्यूजिक पीरियड में बहुत ज्यादा मस्ती नहीं, करी बट हमने। कभी तूने ऐसा बकचोदी करते करते बुक पढ़ी है क्या? कभी बकचोदी चल रही है आसपास? अरे भाई मेरे से मेरे टीचर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों की टीचर मेरे से रीडिंग कर, जैसे क्लास में उठा के पढ़ाते हैं ना कि ये वाला पार्ट तुम पढ़ो वैसा तो मुझसे पता नहीं क्यों पढ़वाती थी इंग्लिश टीचर हिंदी टीचर दोनों। जिस दिन भी बुक रीडिंग का टाइम होगा कि नहीं पहले चेतन, शुरुआत करेंगे चेतन से पहला। और उस वक्त महाभारत नहीं आई थी हमारे पास चैप्टर में, आई गेस 7th स्टैंडर्ड में, नहीं महाभारत कौन से क्लास में दिया है, 7th क्लास में दिया आई गेस महाभारत। हाँ सबसे पहले महाभारत ही थी आई गेस, फिर रामायण आई, फिर गौतम बुद्ध की, तीनों एक साल 6, 7, 8 में एक पूरा कलेक्शन था, साल भर ही पढ़नी थी वो बुक आपको चैप्टर बाय चैप्टर। तो उसमें महाभारत वाला जब आया तो वो इतना ज़्यादा डबल मीनिंग था, इनफैक्ट उसके चक्कर में गौतम बुद्ध भी खराब हो गई थी हंसते हंसते, क्योंकि वो उस वक्त बड़े हो रहे थे। तो 7th कौन सी क्लास में था, वहाँ 7th में रहूँगा उस टाइम पे, तो 7th में उस वक्त गाली वाली देना सीख रहे हैं या डबल मीनिंग सीख रहे हैं चीज़ों का बोलना। तो महाभारत में हिंदी में वो एक्चुअली आपको लगेगा डबल मीनिंग ही चल रहा है, अगर आपने उस मेंटालिटी से पढ़ना सोच लिया कि उसने उसको ये दिया वरदान वैसा वैसा कुछ, तो मतलब बहुत ठरकी से वर्ड लग रहे थे हिंदी में बोलते हो अगर आप, तो ज़्यादा संस्कृति हो जाते हैं। तो उसमें ही रीडिंग में मैं कितना बार तो क्लास में हंस गया पढ़ते पढ़ते, मतलब टीचर मुझसे पढ़वा रही है और मैं इस तरह से, मतलब मैं उसी टोन में बोल रहा हूँ कि गंदा लगे वो सुन के कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ऐसा नहीं होता उसने उसका ये कर दिया ऐसा कुछ, तो संस्कृत में लेकिन इतना डर्टी तरीके से बोलो शब्द को कि वो ऐसा लगता है अरे शी को मतलब कुछ तो गंदी चीज़ बोल रहा है। तो मुझे 2-3 बार तो मैम भी हंसने लग गई थी कि नहीं तुम बैठ जाओ यार, तुम्हारा दिमाग ठीक जगह नहीं है, प्यूबर्टी गलत हिट कर रही है तुम्हें भाई क्लास में कितना तो लंड खड़े हो गए थे, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्लास में ऐसा बोनर आ गया मतलब अचानक से वो प्यूबर्टी के टाइम पे, तो वो बुक रीडिंग के बीच में कितनों को तो हम हंस रहे पागल हो जैसा कि अरे शिट मैन, प्यूबर्टी वाज लाइक रियली, उस टाइम पे तो बुक भी नहीं पढ़ी जाती मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। मतलब अगर प्यूबर्टी से बचना तो आपको किसी हॉबी में घुसना पड़ेगा, जैसे मैं स्पोर्ट्स में घुस गया तो मेरी बहुत सारी प्यूबर्टी साइकोटिक नहीं गुजरी है, कि मैं सनकी हो जाते हैं काफ़ी लोग जिनके दोस्त नहीं होते प्यूबर्टी में, ये मैंने नोटिस किया, आई डोंट नो। तो वो मतलब मेरा एक दोस्त है वो बहुत लोनर टाइप का आदमी है, क्योंकि उसके दोस्त ही 1-2 ही है हमेशा से ही, बचपन से शायद से वो एक ही जगह रहा है, बचपन में शिफ्ट भी नहीं हुआ, तो अचानक से उसकी प्यूबर्टी बहुत वैसी गई, कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ पागल हो रहा था इमोशंस की वजह से। अगर आप चीज़ों में घुसा दो उसे स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा आपको एस्केप दे देती है, रिलीफ दे देती है। तो बुक रीडिंग ऐसी चीज़ है, मतलब घूम के वापस उसी पे आते हैं। एक चीज़ है यार पढ़ने को, लेकिन यार मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है यार, मेरे को साइलेंस चाहिए यार। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से बुक पढ़ेगा यार, वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा,
लेकिन यार उस समय फिर कोई और कहीं से आवाज़ आ रही है या कुछ हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड, वो पढ़ते नहीं बनता। तो नहीं हाँ, बुक पढ़ने मुझे भी लगता है कि मेरे पास एक फार्म हाउस चाहिए मुझे ऐसा, हाँ, कि या एक तो छोटी झोपड़ी में चले जाके फील book चाहिए पढ़ना। जिधर कोई हिलाने को नहीं है ऐसा। नहीं, बुक रीडिंग मैं बताता हूँ, बेस्ट मेरी बुक रीडिंग तब होगी जब आप मेरे सामने से रिसोर्सेज कम कर दो, कि मैं बीच में खाने जा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। मैं बुक रीडिंग बहुत अच्छी करता हूँ उस टाइम पे, कि कहीं यार, जाना ही नहीं है, अभी इधर ही बैठना है कुछ देर। यहाँ पे कुछ- क्वारंटीन में लोगों ने निपटाई होगी यार, अभी तो फुल बुक रीडर्स ने आई फील चार्ट डाली होगी बुक्स, दो बार ना बट काफ़ी सारे फिर एक चीज़ और है मेरे को समझ नहीं आती, काफ़ी सारे बुक रीडर्स एसोल्स भी होते हैं, क्यों ऐसा? यार देख, पढ़ना तो सबको आता है अभी यार, तो वो एसोल भी पढ़ लेता है और बाकी हाँ लोग भी शायद पढ़ से हम लेते लोग हैं। सिर्फ उसी एसोल रीडर से मिलते हैं। ये कल जैसे ये था यार, तो ये इसको पता तो देखा जाए सब कुछ है, बट लाइक आई डोंट नो, ऑफ-रोडिंग। एसोलिज्म निकल रहा था बाहर अचानक से। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ और कुछ इमोशंस के बारे में बात करते हैं जो किताबों से निकलते हैं, जैसे आपने देशभक्ति की किताब कोई पढ़ी है अभी तक? नहीं कोई देशभक्ति की किताब नहीं पढ़ी है? वो देशभक्ति की किताब पढ़ने में अलग वो रहता है ना, थोड़ा सा पंप अप हो जाते हैं लोग, काफ़ी लोग पंप अप होने के लिए बुक्स पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। देशभक्ति की यार, हाँ एक्चुअली देशभक्ति की मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। बचपन में आई यूज टू ड्रॉ देशभक्ति की, मेरे डैड के पास कुछ पतले पतले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के पतले पतले बुक्स थे, और गांधी जी का बहुत मोटा सा, तो उनके आगे स्केची स्टाइल में उनके कवर्स थे, तो वो मैंने रीड्रॉ किए हैं बचपन में। बट मैंने वो बुक्स पढ़ी, पता नहीं उस समय नहीं पढ़ी होगी फॉर श्योर, बट अभी भी नहीं पढ़ी, मतलब हाँ वैसे, बट मैं पेट्रियोटिक बहुत हूँ यार। पर मुझे books तुझे राष्ट्रगान at से least मैं सबको realistic बता दूँ, राष्ट्रगान से आई थिंक आई गेट गूज़बम्प्स एवरी टाइम, तो वो थोड़ा कहाँ पे से geeky गूज़बम्प sound आने करता कब हूँ, से but- शुरू किए? हाँ? ये गूज़बम्प आने पहले से ही शुरू हो गए? नहीं जब बहुत से- क्रेजी पहले से ही है यार, काफी जब से time सुना से। है तब से? हाँ हाँ, आई फील द राष्ट्रगान। स्टेयर्स इन हेवन जैसा फील होता है। अगर फौजी वजी बना रहेगा मैं पिछले अगर बार के। जिमी पे गाता उस गाने को तो मतलब लिक्स में बता देता आई थिंक वो। लिरिक्स अरे यार, और कुछ और बताओ यार, किताबों के बारे में और कुछ जानना है, जैसे तुमने कॉमिक्स कितनी पढ़ी है? कॉमिक्स तो मैं बोलूँगा वो भी लिटरेचर ही है। कॉमिक्स मैंने यार, अच्छा। मैंने जो कॉमिक्स मेरे डैड के साथ मैंने पढ़ी हैं वो है सुपंडी। सुपंडी, Yeah. ये पढ़ी है क्या? बाकेलाल? बाकेलाल आती थी इसकी राज शिकारी comics की। शंभू, सो ये इसकी है, दीज आर ऑल कंपाइल्ड इन आई थिंक, नाम भूल रहा हूँ यार, क्या पब्लिकेशन का नाम? पब्लिकेशन का नाम, जिसमें Penguin सुपंडी Press। आता था, मुझे नॉट भी- पब्लिकेशन बट हाँ सम, और उसके पहले फिर मैंने वो पढ़ी है चैंपियन करके, एक वो आती थी न्यूज़पेपर स्टाइल की, वो थी वैसे 4 फ्रेम वाली। 4 फ्रेम वाली नहीं, वो बुक्स आती थी, पतली अच्छा, पतली अच्छा। कॉमिक्स आती थी चैंपियन। उसमें एक और स्टाइल थी उसकी बचपन से, वो स्टाइल मैंने बचपन से देखी। सबका कवर बच्चा रखते थे वो, अच्छा जैसे फैशन मैगजीन्स में कैसे मॉडल बन रहती है या फुल ग्राफिक्स ये रहता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई तो एक क्यूट सा बच्चा उठा के डाल देने का बस। उसको क्या उसको कलर करना है आपको? नहीं फुल कलर फोटो यार, वो पार्ले जी से इंस्पायर्ड रहेंगे वो तो लोग उसमें यार। कुछ लिखा क्या है? उसमें लिखा कुछ है? कुछ नहीं, चैंपियन चैंपियन में बच्चे का हाँ, स्टिकर जैसा हो गया। बच्चे का एक पोर्ट्रेट है फुल पावर। पर किसी और का, तुम्हारा भी नहीं है वो, मतलब तुम किसी relate का नहीं कर रैंडम सकते। बच्चा है कोई, मतलब आप अफ्रीकन बच्चे से relate रैंडम कर रहे हो बच्चा है, कि- इमेजिन कॉमिक कवर जिसमें रैंडम बच्चे का फोटो लगा हुआ और हम क्या लाइक यू यूज्ड टू मास्टरबेट टू दैट और बचपन में? वो मास्टरबेट्स ऑन कॉमिक्स है, नहीं, मतलब बच्चे वो हाँ बहुत- शांताराम मंतराम, बट यार वो आई हैव भी नो आइडिया, मैंने कभी नहीं यार, वो कॉमिक्स पे masturbate। वो थोड़ा नहीं वो that- थोड़ा कंपोज ही सही नहीं होता है यार, रीडिंग एंड मतलब मुझे तो बाद में पता चला कि अच्छा ये सब सेक्सुअल एलिमेंट्स हैं, ये जो बाद में पहले वाले कॉमिक्स में पढ़ता था मैं, और बाद में पता चला अच्छा नहीं, इसको देख के लोग टर्न ऑन हो सकते हैं बाद में फ्यूचर में कि अरे हाँ यार नाइस है ऐसा। सही है। फिर कॉमिक्स भी अच्छा ये पढ़ी है मैंने तो, ये कॉमिक्स पढ़ी है ज़्यादा, राज कॉमिक्स आती थी नहीं यार, हाँ, मैंने पिंकी जिसमें नागराज आई और थिंक, ये सब इंडियन हीरोज हैं। तो अच्छा, इनकी मतलब वैसे ही है काफ़ी, कितने सारे आई गेस एडिशंस निकल चुके हैं, सीजन जैसे वो निकलते हैं, सीजन 1 सीजन 2 ऐसा एडिशन वॉल्यूम 1 निकलते हैं ना, तो कॉमिक्स तो मतलब नेक्स्ट लेवल हम और ज़्यादा पुरानी है, मतलब अगर हिस्ट्री वाइज देखेगा तो 1800 1700 से जूल्स वर्न के टाइम से। जूल्स वर्न का नाम पता होगा तुझे, वो एक फिक्शन राइटर था। अच्छा उसका वो है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड और ऐसा, ये आई गेस उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट उस टाइम पे कॉमिक्स 1800 आई गेस, अबाउट उसकी कॉमिक्स में डेली एडिशन जैसा निकलता है ना, डेली कुछ तो स्पेस क्राफ्ट या कुछ फ्यूचरिस्टिक गाड़ी का, हेलीकॉप्टर का ऐसे स्केचेस बनाता था वो। तो कॉमिक्स लोग काफ़ी टाइम से मतलब बहुत सीरियसली फॉलो करते थे, लाइक नहीं आया तो लोग पागल हो जाते थे संडेज को, या उसको उसका एडिशन नहीं आया तो
दैट मतलब पता नहीं ऐसा कभी हुआ होगा कि नहीं आया होगा, बट ही यूज्ड टू ड्रॉ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसमें आते आते अभी तो कॉमिक्स आर लाइक मच मोर डिटेल्ड नाउ, 3D सॉफ्टवेयर पे बन जाती है, अच्छी पेंटिंग क्वालिटी अच्छी, पहले इंक अलग आती थी, थोड़ी सी मतलब डिफरेंट वाटर कलर सी फीलिंग थी पहले पुरानी कॉमिक्स में जो हम भी पढ़ते हैं। ग्राफिक नॉवेल्स में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होती है वाटर कलर सी फीलिंग पुराने वाले। बट अच्छा है मतलब इन जनरल मुझे लगता है अगर आप सिर्फ कॉमिक्स भी पढ़ो तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ट्रेंड में काफ़ी ट्रेंड्स आते थे उसमें, कॉमिक्स में ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे डायमंड कॉमिक्स अलग आती है, हाँ एक डायमंड कॉमिक्स है वो और बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये चुटकी और पत्नी कैसे कैसे कैरेक्टर। बचपन में बच्चा था क्या कि बड़ा हो गया था? मैं हाँ। नहीं है बचपन में नहीं, पढ़ना तो था ही ना यार। ये तो मैं कह सकता हूँ मैं बचपन में बड़ा तो था, इतना तो था कि मैंने व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, ऐसा तो चलता था मेरे साथ। मतलब वो घर में रिचुअल्स होते थे, हिंदू वाले रिचुअल होते हैं ना घर पे, जैसे पूजा तो चलो ठीक है फिर भी अच्छा लगता है कि चलो हारमोनी जैसा गाना गा रहे हैं सब बैठ के, वो अच्छी चीज़ ही है। बट उसके अलावा जैसे रिचुअल होते हैं कि आज इसकी पूजा, मैंने कहा साल में कितनी, तो मेरी तो अभी तो बंद हो गई है काफ़ी, बट मेरे गांव में या मेरे फैमिली में इतनी पूजाएं होती हैं साल में, हर कोई यज्ञ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई मुर्गे की बलि दे रहा है, वो भूत उतारने के लिए आपको मुर्गे की देनी पड़ती है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अब तो कम हो गया बहुत ज़्यादा। बट हाँ बचपन में ही मैंने नकार दिया था सिरे से कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो अजीब अजीब चीज़ें हैं जो मतलब पढ़े लिखे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स हैं या जो भी है जितने भी बड़े लोग हैं अपने से, वो उन सबको मैं मानता हूँ बहुत स्मार्ट लोग हैं सब, मतलब काफ़ी कम रिसोर्स में ज़्यादा काम करने वाले हैं। अब मैं बताया ना एक मेरे अंकल है शायद से, वो भैया लगते हैं मेरे, वो खुद का घर अपने मैंने सामने बनाते हुए देखा है यार, मतलब मैंने कहा किसी को, मतलब मैंने स्किल देखी नहीं आज तक किसी के पास, मतलब आर्मी में भी 4-5 लोग मिलकर बनाते हैं अकेला आदमी मिल के मतलब सब कुछ बना। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गांव में वो लोग सब खुद से लिया है, मतलब उन्होंने भी किताब नहीं पढ़ी शायद से लाइफ में कभी, बट इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। प्रिमिटिव इंटेलिजेंस तो वो यार, आई थिंक प्रिमिटिव इंटेलिजेंस इज द थिंग। आपको नहीं पढ़नी चाहिए कि इकिगाई पढ़ने की ज़रूरत। हाँ पढ़नी ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए आपको, आप सेट सिटी में हो सेट, इनफैक्ट बुक्स मुझे लगता है बुक्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, उस कल्चर में ज़्यादा है, गांव में कम पढ़ते हैं लोग बुक्स। गांव में शायद ही आपको एक दो विद्वान मिलेंगे, पंडित जी या कोई नहीं, गांव में बातें कर करके आपस में बड़े लोगों से कुछ बात कर ली, कुछ समझ लिया उनसे कि करंट अफेयर्स बताओ क्या चल रहा है बस बाकी पुरानी गाने सुनाने के लिए दादाजी है हमारे पास। अभी तो कितने लोग न्यूज़ सुनाते हैं आपको यार, इतने तो लाइक इससे मैं इसमें आना चाहूँगा कॉमिक्स से शिफ्ट होके मीडिया पे आप किस तरह का मीडिया कंज्यूम करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे बट डिपेंड करता है आपके ओपिनियन पे, ये बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट इन द सेंस। हाँ वैसा, बाकी तो आप कैलकुलेट अपने हिसाब से कर दो सब कुछ, चाहे कोई सी भी आपको कैसे भी न्यूज़ दे, आप इतना जल्दी, हम लोग तो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं कि किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी बता दी और हम पागल ही हो रहे हैं उसके पीछे। जैसे बीच में एलियंस पे हो गई थी तो लोग पागल ही हो गए थे, ढूंढने लग गए थे लोग एलियंस को कहीं यहीं पे रहते हैं, इस मंदिर में रहते हैं नहीं यार वो फिर कंटेंट हो गया यार, वो नहीं मीडिया में, जैसे इंडियन मीडिया में तो मैंने बचपन से, अभी तो मैंने मीडिया आई वुड से मैं मतलब कॉलेज आने के बाद मैं घर से जब निकला हूँ तो मैंने टीवी छोड़ा है देखना, मतलब पहले मैं टीवी देखता था, तो टीवी में शाम को न्यूज़ लगती है घर पे और वो आप देखते हो कि अच्छा सब लोग यही देख रहे हैं, मतलब शिट कितना डेंजरस है ये। एक तो मीडिया वेंचर न्यूज़ कब से हो गया, मतलब ये तो बहुत गलत हो गया, मतलब अंकल लोगों ने सही नहीं किया अपने पुराने कि मीडिया को ना फुल न्यूज़ का वो दे दिया, मतलब मीडिया मतलब न्यूज़, मतलब वो कुछ तो भड़कता तड़कता लेके आएगा। नहीं फिर लोग मीडिया इन जनरल देखे, अपन डिजाइनर लैंग्वेज में देखे, मीडिया इज यार कितनी वर्सेटैलिटी वाली चीज है। अभी क्या हुआ है, अभी मीडिया मीडियम्स पहले एक तहलका आता था याद है, एक तहलका मैगजीन अभी भी आती है शायद से, और एक ऑल्ट न्यूज़ आती है, ये लोग वैसी हैं जो, बट अगेन तो देख फिर ये वही उस तरफ हो गई, न्यूज़ तरफ का मीडिया हो गया। ये फैक्ट चेकर्स हैं, इनको न्यूज़ भी नहीं बोलते, इनफैक्ट ये न्यूज़ को फैक्ट चेक करके देते हैं, तहलका और ये सब, ये पूरा ये सिर्फ वेरिफिकेशन में लगे रहते हैं न्यूज़ के। तो अभी जैसे हम लोग एक कल उसका देख रहे थे, आकाश बनर्जी का वो है, मतलब वो छोटे छोटे स्केचेस जैसे बनाता है आज की न्यूज़ के, जैसे पीइंग ह्यूमन बनाता है, तो उस पर उसने वही बताया था कि एक फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा इंडिया में ट्रेंड में चल रही है। जैसे आपने भी बहुत सारी फेक न्यूज़ देखी जो अभी तक आपको नहीं पता फेक न्यूज़ है, तो उसमें वैसी फेक न्यूज़ बताई है कि इतनी जगह एक बंदा जैसे वो ड्रोन उसको वो बोला था कि वो रिसाइकल ड्रोन्स बनाता है, वो वाली फ़ोटो डालता है वो, उसके 5-6 फोटोज़ है और उसको ऐसा दिखाया नासा में उसका हो गया, सब जगह सिलेक्शन हो गया, बट वो बाद में पता चलता है कि वो बंदा ड्रोन्स के एग्जीबिशन के सामने जाके ड्रोन्स के साथ फोटो खिंचाता है बस, और कुछ नहीं। तो वो फेक न्यूज़ है, बट आप लेकिन ऐसा है कि उस न्यूज़ पे मैं ध्यान भी नहीं देता, ऐसा नहीं कि बस बच्चे को कॉल करके बोलना लो हाँ मेरे लिए भी एक ड्रोन बना दे रिसाइकिल करके, बट स्टिल वो फेक न्यूज़ है कि आपके दिमाग में चीज़ें भर रही है और आप शायद से टेंशन में जा रहे हैं। कंटेंट हो गया है, कंटेंट मीडिया की बात करते हैं, कंटेंट तो मैं बिल्कुल यार मैं बताऊं, मैं क्योंकि मीडिया में बोलोगे ना
विद डेफिनेशन मैं हमेशा विजुअल मीडिया बहुत कंज्यूम करता हूँ, एज इन इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स और ये सब। तो अभी क्या है, अभी मेरा इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका मीनिंग समझने के जो ग्राफिक्स कह रहा है, लेकिन जो इंटेंशन है या किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो सब यार मतलब नहीं है उसका। मैं बातों पे कम ध्यान देता हूँ इस वजह से। जो काम की बात है वो सुनने के, बाकी बातें तो चल ही रही हैं। उससे बेहतर ये मुझे दिखता रहे कुछ क्रेजी दिख रहा है मेरे को, वो कंजम्पशन नहीं मेरा आपके ज़्यादा है। मतलब ऐसा है ना तेरा वो जो तू मीडिया कंज्यूम करता है उसमें मेहनत ज़्यादा है और थोड़ी सी और हाँ, थोड़ा क्राफ्ट वर्क ज़्यादा बोलेंगे। इधर लिखना क्या फिर बातें भी, में जो हाँ। ज़रा सी सड़े उसमें वो कर दी तो मतलब यहाँ सिर्फ रादर देन कंटेंट आई वुड से मीडिया एज इन कुछ एक अच्छा पोस्टर्स अच्छे बनाने चाहिए कम से कम। हाँ एग्जैक्टली, Banners और वो ग्राफिक मोशन और कुछ ऐसा क्राफ्ट वर्क आना चाहिए उसमें। अरे वो मेरे को सबसे टर्न ऑफ तो वो लगता है जब न्यूज़ के नीचे ऐड चल रहा होता है और सडनली आप कोई सीरियस न्यूज़ और उसके नीचे वो पाइप का ऐड आ रहा है, कुछ वो तो बहुत क्रेजी, वो तो यार अब वही है ना, वो लोग एक मुझे इस चीज़ से भी कंप्लेंट है कि इंडिया में हर बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी एडवर्टाइजमेंट से ही कनेक्टेड है। बहुत मतलब ज़्यादा। आप अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ें। का तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे या फंडिंग नहीं मिलेगी। आपको एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, किसी और का प्रमोशन करो या एटलीस्ट जिस कल्चर में हमें अभी जिस बिजनेस में हम लोग चल रहे हैं उसमें तो वैसा ही कि लोग फेवर ज़्यादा वैसा चलता है कि रेफरेंस ऐड। मैं तो परेशान हो गया, मेरे को रेफरेंस तो यार वो इंस्टाग्राम नहीं यार, नहीं वो कुछ मैं तो अलग- सोच रहा हूँ मैं छोटा स्टूडियो खोलता हूँ अभी, फोकस करता हूँ सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स पे फिलहाल। 4-5 लोग रख लूँगा वॉलंटियर्स जैसे, उनसे काम कराऊंगा, प्रोडक्ट चल गया तो फिर बेच देंगे, नहीं तो कुछ और कर लूँगा। लेकिन और दूसरे प्रोडक्ट बनाएंगे। नहीं बाकी तो कर ही रहे हम लोग, मीडिया मार्केटिंग जो भी है वो चलता रहेगा, वो तो उसके लिए ज़्यादा ये दिमाग यार लगाना भाई पड़ता ये खाने पीने के लिए करना पड़ता है यार, ये बहुत जालिम सोसाइटी है ये, श्योर है। आर्टिस्ट लोगों को वो नहीं मिलता ना हमें। हाँ, क्या कहते हैं सीबीडी बेलापुर, पता है तेरे को? नवी मुंबई में CBD? एक प्रोजेक्ट था, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, उस एरिया का नाम था आर्टिस्ट विलेज। और वो एरिया को सिर्फ वैसे आर्टिस्ट बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है, तो सिर्फ आर्टिस्ट को मिलना था, और वो फ्लॉप प्रोजेक्ट है यार। मैंने पढ़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में, बट वो ऐसा Nobody gave funding nobody, for- वो एक कॉलोनी है वो एट द एंड। आर्टिस्ट गरीबी से मर गए वहाँ पे अंदर ही, आज भी लाशें पड़ी हैं। हैं, फिर पैसा वैसा है वो सब। नहीं यार, मैं आई नॉट इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट मैं बोलूँगा थोड़ी गरीबी इस वजह से भी झेल रही है क्योंकि यार अपने को अभी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर टाइम देना पड़ता है यार, वो फुल कंसंट्रेशन। नहीं मैं बताता हूँ वो इन जनरल क्या बिना पैसे के- nobody is actually looking for us अभी लिटरली, ये बताऊंगा मैं ज़्यादातर। नहीं मुझे उसका फर्क ही नहीं है ना, आई एम लुकिंग फॉर माई प्रोडक्ट, वो मेरे पास नहीं है। अगर तू सोच ना लुकिंग फॉर इन द सेंस, मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल तूने टायर ठीक करने की दुकान खोली या कहीं अगर सही जगह खोली, अगर किस्मत अच्छी रही तो तेरे पास इनफ काम आने वाला है कि तेरे को दुकान बंद करनी पड़ जाएगी परेशान होकर या तेरे को कुछ नहीं करना वो पड़ेगा। मैं वो राह चूज ही नहीं करूँगा काम का, वही बंद कर दूंगा। तो काम में लेकिन दिक्कत इतना कहीं से जरूर अरेंज करूंगा कि मेरा जो अभी, क्योंकि यार आदमी जीता है तो एक दिन में कितना पैसा लगता है वो पक्का है कि हाँ कुछ तो इतना पैसा उसका दिन का बना है, कितने दिन जिया है ये इस दिन में। नहीं मेरे को तो मैंने एक चीज़ और ढूंढी है कि अपने मार्केट और में जिएंगे तभी काम करेंगे क्या? ऐसे ही होगा ना भाई। पता नहीं यार, तुम तो और कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। नहीं यार, एक प्रोडक्ट पकड़ो, काम करो और पैसे कमाने लायक पैसे ले लो जल्दी से। मेरा नहीं, तो वही for फैसला नहीं example, होता तू भाई, तो सोचता है- मुझसे बॉम्बे में मिले ही है, मैं तो बॉम्बे में फुल अच्छा। मस्ती मारने ही गया था। तो वो Premarital sex करने। वेल पेड जॉब, प्रीमैरिटल सेक्स, और मे भी पता नहीं, आई डोंट नो, बट एडल्ट्री नहीं यार। अरे यार तुम ऐसा मुझसे चलो नहीं, पॉडकास्ट डाल देंगे इधर। एडिटरी में तो मैं एक चीज और है मेरे को, तो चलो इस पॉडकास्ट में नहीं बोलूंगा, आई एम जस्ट सेइंग ओके। एडिटरी पे भी कभी बात करेंगे, वो बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें 3-4 पॉडकास्ट निकल जाएंगे। नहीं यार वो एडेंट्री नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये जो एक जुनून का अजीब सा कीड़ा ने काटा है बॉम्बे में कि अपना कुछ एक बनाओ, अपना जो तुम दूसरों को सर्विस दे दो, किसी कंपनी को सर्विस दे दो, उसका एक यूज करके कुछ अपना बना दो, बेस्ट है ना? उसके लिए कुर्बान हो गई मेरी बेचारी गर्लफ्रेंड, मेरी अच्छी जॉब और मेरा खुद मैं तो जा ही रहा हूँ दूसरा काजी बनने चले तो तुम्हारे ज़्यादा भी हो सकता अब वो पहाड़ तोड़ने जैसा है तो नहीं है, इजी है वैसे, बट वही है कि टाइम मैनेजमेंट मेरे को बहुत लगता है कि मेरे पास ऐसी टाइम नहीं वैसे मेरे ये पहाड़ तोड़ना अच्छा सही लाइन निकाली है कि अभी हम लोग काम ऐसा ही करते हैं कि घर वाले एक्चुअली सरकास्टिकली मेरे घर वाले बोलते हैं वो पहाड़ तोड़ने निकले हैं आज। पहाड़ तोड़ निकले, हाँ मतलब वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, काइंड ऑफ मोटिवेशन नहीं मेरे काम नहीं यार मजा नहीं आ रहा है ऐसा। नहीं पापा को मैं बताता हूँ, पापा को समझ नहीं आएगा ना, यार क्या मतलब
क्या तो बात पापा ने कभी देखा नहीं है क्लाइंट से क्या बात करनी है, उसने क्या ही बात करी होगी आपसे, क्या पैसे की बात, क्योंकि मेरा बेटा है तो अपने बेटे को सब समझते कि इसने करी होगी, पैसे की बात तो रहने दो फिर। हमारा बेटा हमें पता है कितने पानी में। हाँ, हर पेरेंट की तरफ से इतना तो रहता है, इससे तो बिजनेस होने से रहा। मतलब अनलेस आपने कुछ बचपन में उखाड़ा हो। मैं तो जैसे बचपन में बहुत स्टूडियस टाइप का था, मतलब हर चीज में जो बोला वो कर दिया, सबको स्पोर्ट्स बोला कर दिया, किसी ने ड्रामा बोला कर दिया, हर चीज में कर दिया, एक एक मेडल लेके आ गया करके बैठ गया। लेकिन मतलब फिर ये खुद का दिमाग चलाने का मतलब घर वाले सोचते नहीं। वो तो चलो ये कि चलो मैं खुद का दिमाग चलाने लग गया थोड़ा टाइम के बाद, और घर वालों को समझ आ गया, तो मैं बोला चलो ठीक है, शहर में रह सकता है शायद से। समझ रहे हो, अब ये होई अभी वही अब तो ये होई। नहीं, उसमें भी सोच, मैंने ड्रग्स वर्क कुछ घर के टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता, मतलब ये भी होंगे तो किसी को पता नहीं चला, तो वो भी अच्छा रिकॉर्ड में चला कि नहीं हाँ मैं तो नहीं हाँ मैं समझ जाऊंगा। तो तू तो अच्छा बच्चा रहा है हमेशा से। हाँ वो कह सकते हैं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया कि तो चलो सब हो जाएगा करके दिक्कत नहीं है। मोनी स्पॉइल्ड है। मोनी तो पैसे मांगती थी बचपन से भाई, वो तो जब से उसने पता पैसे का कंसेप्ट पता चला था, वो बचपन से घर वालों से पैसे नहीं मिले तो चुरा लेती थी। और वो शेल्फ पे चढ़ के मेरे को लेती थी। जरूरी होता है भाई मेरे को नहीं पता वो चोरियां कर रही है, मैं पूछना पड़ता था कि भाई तूने करी कैसा चला, तूने तेरे यार बाबा ये सब ऐसा वो दे देती थी मेरे को कट कभी पेस्ट्री खिलाती हुआ। भाई हम लोग मतलब तू सोचता 2 बच्चे साउथ इंडिया में घूम रहे, 2 गोरे बच्चे साउथ इंडिया में, पूरा बालाजी मार्केट है कोई, तो वहाँ पे स्कूल जाते हैं वहाँ पे 2 बस बदलनी पड़ती थी कभी कभी हमें, क्योंकि आर्मी वाली बस कभी कभी नहीं आती थी लेने, क्योंकि बहुत मेरा कैंपस सीआरपीएफ में था और आर्मी की बस आती थी लेने, उसका कैंपस अलग ही है, हमें लेने आती थी सिर्फ, तो उसके चक्कर में हमको आधा बस से जाना पड़ता था। तो बीच में मेरी बहन ने कितनी चोरी की, क्या किया, वो सब बता के मेरे को रास्ते में कुछ खाएगा क्या, चलते को टॉफी खिलाती हूँ। कहाँ से आ रहे हैं पैसे तुम्हारे पास? तो मैं वैसा हूँ कि मैं मांगता ही नहीं था घर में पैसे कभी, मतलब दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो मैं खुद से नहीं मांगूंगा। घर वालों को बोलना पड़ेगा अरे ये ले जा भाई, वो वापस कैसे आएगा। मैं खुद से ही चल रहा हूँ, देख लेंगे चलो। बड़ा हो गया तू, बचपन में बड़ा हो गया था, ये तो सही है। बड़ा नहीं होगा, नहीं वैसे बड़ा भी नहीं बोलेंगे मेरे को, मुझे जिम्मेदारियां ऐसा भी नहीं बोलूंगा किसी ने ज्यादा ध्यान रखा मेरे पे, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कम ध्यान रखा है, बट पता नहीं हाँ कह सकते, मैं अकेला बहुत रहा हूँ बचपन में, कह सकता हूँ। नहीं वो सही है ना, सही है। अकेला इन द सेंस खुद की मर्जी से अकेला। वैसा नहीं कि अकेले दोस्त नहीं मिले, दोस्त बहुत सारे थे। दोस्त तो मतलब इनफैक्ट मैं ये उल्टा है इनफैक्ट स्कूल के इसमें कि मेरे को बहुत लोग जानते थे उल्टा, पर मैं दोस्त नहीं हूँ किसी का। मैं स्कूल में ड्राइंग बनाता था बच्चों के लिए, कि कॉमिक बनाता था, कॉमिक्स बनाता था, ड्राइंग्स बनाता था। आज मैंने कुछ मन किया क्लास में पीछे बैठ के ये बना ली, तो वो मेरा दोस्त लेके जाएगा लड़की पटाने के लिए। मैंने एक पूरा स्टैंडिंग चॉक स्केच जो है ना, मैंने स्कूल में अपने एक बंदी का पूरा एक बना के रखा था, मतलब जगह जगह पर था, गुड 10-15 प्लेसेस इन स्कूल, कहीं कहीं दिख जाएगा लोगों को, तो मतलब वो लोग जानते थे ये कौन बनाता है। अरे वो बंदा कौन है जिसने प्रिंट मशीन बनाई थी, थॉमसन, जे थॉमसन, नहीं मैं उसका नाम भूल गया, कोई तो पोर्चुगीज नेम है उसका, आई गेस क्रिश्चियन नेम है। इसमें राजा रवि वर्मा ने दिखाया, जिसने प्रिंट बनाया अमेरिका से, सबसे पहली बुक बाइबल उसने छापी थी, याद है? प्रिंट जब प्रिंट मीडिया स्टार्ट होता था, गीता प्रेस सोल्ड। अरे मैं उसका नाम भूल गया, टीजे थॉमसन, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ पोर्चुगीज नाम है आई गेस। ये कहां से है लेकिन? नहीं, इससे मैं सब बता रहा हूँ कि मैंने उसका एक पोर्ट्रेट बनाया था बचपन में। अच्छा। उस बंदे का जिसने प्रिंट मीडिया मतलब बुक से देख के बनाया था। अच्छा। बहुत बड़ा, तो क्लास वाले उस वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि क्लास का जब भी सजाने वजाने, भाई मैं हाँ ये बताता हूँ, मेरे को आर्ट की वजह से स्कूल में मैं सिर्फ लड़कियों के साथ घूमा हूँ, आर्ट की वजह से, कि स्कूल की जो आर्ट की टीम होती है ना, एक स्पोर्ट्स की टीम होती है, उसमें तो मैं हूँ। ड्रामा की टीम में भी मेरे को किसी ना किसी में डाल देते थे कि नहीं आप थिएटर भी करिएगा। और उसके बाद बचा ये आर्ट का काम, क्राफ्ट का, स्कूल में कुछ सजाना है, वो आज वो लग रहा है, तो आपको ग्लिटर का तो उठाया नहीं मैंने, कटिंग सीजन मेरे को फेविकॉल से नफरत थी, तो मैं उसमें भी कंसेप्ट आर्टिस्ट बन रहा हूँ कि नहीं मैं बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। बाकी चिपका था सब लड़के सिलाई, किसी को बताना मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सब पता है। नहीं उस पर फिर ऐसा कि मैं बता दिया, आइडिया बता दिया ये ब्लू में करते हैं, फिर थोड़ा टचअप देने में आ जाता था। लेकिन एक मैं वो अपना एक वो बताऊंगा, क्या कहते हैं, एक क्राइम जैसा बता सकता हूँ। मैंने स्कूल में हमने क्या किया, 4 दोस्त थे 9th स्टैंडर्ड में, नए स्कूल में गए थे, मतलब ब्रांच चेंज हुई थी मेरी, मैं देहरादून वापस आ गया था, तो बीरपुर में, तो वहाँ पे हम 4 दोस्त थे, और हमने मतलब 9th स्टैंडर्ड में तो इतनी जल्दी दोस्ती हुई है, स्कूल में आया और 1 महीने में दोस्त भी बन गया, फुल बढ़िया, ये गैंग डिसाइड हो गया अपने आप ही। 4 दोस्त मिलके प्रोजेक्ट बनाना है साइंस का, किसको अब खेलने से किसी को फुर्सत नहीं है, सब दिन में 4 तो अलग अलग गेम खेलते थे, कोई फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ खेलेंगे, फिर वहाँ खेलेंगे। तो एक बंदा था जो प्रोजेक्ट बनाता था, उसके पास गए
अरे अपने दोस्त गुंडे भी दोस्त थे अपने, अच्छे दोस्त तो थे ही आगे फ्रंट बेंचर। शाम को गुंडे लोग मिलते थे हमें गलियों में सिगरेट पीते हुए भाई उसमें 9th क्लास में, और सब नेपाली, वो पूल खेलने यहाँ जा तक रहे। रुमाल पहना है, चेन लगी है बेल्ट पूल को। खेलने जा रहे। हाँ वैसे वाले वीडियो गेम पार्लर चलते थे उस टाइम, तो वहाँ मिलते थे सिगरेट पीते हुए वीडियो गेम गेम पार्लर पार्लर। हाँ तो वैसे दोस्त चल रहे। तो एक बंदे से हमने फिर प्रोजेक्ट बनवाया, वो उसने बहुत अच्छा अर्थक्वेक का एक मॉडल बना के दिया हमें, जो कि बटन दबाओ तो पूरा गिरता है गड़गड़ थर्मोकोल का। और हम वो लेके चले गए, हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए उसमें, थोड़ा पेंट चेंज किया उसका, थोड़ा अच्छा सजाया उसने नॉर्मल थर्मोकोल से, उसने मोटर लगा के दी थी इन जनरल, अच्छा। और थर्मोकोल से क्राफ्ट करके दिया था थोड़ा थोड़ा। वो प्रोजेक्ट ले गए और स्कूल वाले पागल हो रहे हैं, शॉर्ट हो गए स्कूल वाले कि फक बच्चों ने बनाया है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों ने। और जबकि ये वो बच्चे जो हम भी ध्यान नहीं देते इन पे कि ये खेलते वेलते रहते हैं, मतलब शांति रहते हैं नॉर्मली, तो पता नहीं क्या करते होंगे। हम लेके आ गए, लोग पागल हो रहे हैं, मतलब लोग ऐसा हो गया कि अरे भाई ये बटन से, मतलब टीचर बाहर से गेस्ट आ रहा है तो सबसे पहले उसको स्टाफ रूम में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे था वो अर्थक्वेक का मॉडल बनाया हुआ गड़ करके गिरता है वो भाई। वो लोग पावर लोग मतलब फंडिंग ऐसा होता है कि हमारे वैसे जैसे फंडिंग मिलेगी स्कूल को। मतलब 2 साल रखा है वो, मतलब मॉडल के बीच में वायरिंग खराब हो गई थी, तो वापस एक बार 1-2 साल बाद आते हैं, बेटा तुमने 9th में बनाया था ना वो लेके आना, वो उसको कुछ तो खराब हो गया, तो उसकी वायरिंग ठीक कर रहे हैं उसके साथ बीच में बैठ के, वो भी बिल्कुल क्लास के बैक बेंचर के साथ गए क्योंकि उसको बाहर भागना था, तो मैंने कहा इसको लेके चलते हैं। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापस आए हम लोग, सब ठीक ठाक करके पीरियड मिस कर दिए। हाँ तो वैसा बोल रहा था, बड़ा तो नहीं हुआ था बट क्या कहते हैं, सीखना तो सब पड़ता ही है। तो लोगों ने खींच के सब कुछ ही सिखा दिया वैसा। प्यूबर्टी जल्दी हिट होगी। मैस्टरबेशन लेकिन बहुत देर में पता चला इस बात का, गम भी है खुशी भी है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अब मैं काफी चीजें नहीं करता जो बचपन में करता था, जैसे घंटों टीवी देखना। और डू यू मिस इट? और सही है डेफिनेटली भाई, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि मेरे को बीच में जुनून चढ़ जाता है ना। अरे तो जवान हो बचपन में जाते हैं थोड़ी कि पैसे कुछ- कमाने होते हैं। कुछ नहीं बचपन में नहीं, बचपन में तो वही तो कह रहा हूँ, चिल पीरियड चाहिए। मैं सोच रहा हूँ वापस से कोई ये प्रॉब्लम है यार, तो यार बच्चों बड़े लोग बड़े हो जाते हैं तो पैसे क्यों कमाने पड़ते हैं? वो दिक्कत है। पैसे तो मैंने कल मम्मी मुझे पूछ रही थी कि अरे शादी कर ले, फिर कर ले कोई दिक्कत नहीं, हम तो तूने बोली, तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। फिर आप 1 साल बाद बोलोगे कि बच्चा भी चाहिए, तो फिर अभी बता दो, पहले ही बता दो। मम्मी कहती नहीं है तो तुम देख लो करके बच्चे अच्छे को डिसाइड कर लिए सब कर लेना फिर अगले साल। नहीं यार मम्मी कुछ डिसाइड नहीं, वो कहते ना अभी बड़े ही हो रहे हैं, अभी तो हुए नहीं है। अरे तू हो गया है तुझे, तू बल्कि तू अभी इस एज में शादी कर लेना चाहिए। सही है। अच्छा पोता होता है कि हाँ यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ जहाँ बढ़िया बीवी खाना बनाती है इफ यू वांट टू। नहीं वही तो दिक्कत है, वो यूटोपिया है अभी तक। अभी सब यही बोलते हैं कि जैसे तू भी, तेरे अंदर भी कोई यूटोपिया होगा कि जो जगह है जहाँ पे तेरे को भी पता है अभी तक वो है कहीं पे, पर तूने भी नहीं ढूंढी है, या ढूंढी है तो तू जा नहीं सकता है उधर। तो वो तो एनीवेज रहेगा, वो तो अभी इनफैक्ट वो जगह ढूंढनी पड़ेगी मेरे केस में। मैं तो बोलूँगा यूटोपिया ढूंढ रहे हैं सबके सब अपना अपना छोटा सा यूटोपिया बोलेंगे ना उसे आई गेस। हाँ योर कंफर्ट जोन ऐसा, कंफर्ट जोन जहाँ पे कि ऑरोविल हो गया जैसे, हाँ सबकी एक दूसरे से बनती है, कोई मार्केट नहीं चलती, एक हाँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है, सबकी अपनी अपनी स्पेस आप जो चाह रहे हो वो सबसे ज्यादा मिलता है फॉर श्योर यार। ऐसे बल्कि बनने चाहिए यार, इनफैक्ट अपार्टमेंट्स क्रिएट होने चाहिए ऐसे एक, मतलब पता नहीं बट समाओ यार वो फिर वो सब जगह कुछ ना कुछ मैं नहीं पता। फैलती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी कम हो जाएगा अभी, पता नहीं है वो एआई के आने की वजह से होगा, पर उसके बाद शायद से देयर इज अ चांस, आई थिंक सो, मे बी हो सकता है। शहरी रोबोट बुलाएंगे फिर हम लोग, शहर से आए रोबोट, गांव के रोबोट अलग है, वो थोड़े से डब है वायरिंग खराब है उनकी। बट ये जानवरों को सिखाओ, 2 ऑप्शन है। एक ही ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोग जानवरों पे क्यों और एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे। एक्सपेरिमेंट तो मारने वाला नहीं, बट एनिमल एज मदद करो यार, तुम भी अर्थ पे, तुम भी बिल्डिंग बनाओ 2-4 अपने हाँ वैसे दिखते रहे। मतलब काऊ पे रुक गए फिर लोग, अंकल लोग काऊ पे रुक गए कि चलो काऊ से काम करवाते हैं, बट उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाए। कुत्तों से भी काम से लड़ाई करवा ली, कुत्तों से काम नहीं करवा रहे, उसके बाद कुछ नहीं करवाया ना। लास्ट हाथी एनिमल जो हाथी को भी टेम करना मुश्किल है, उसी हाँ उन्हीं की वही पागल हो फैमिली जाता है, वही एज की हो गई है। लेकिन हाँ जानवरों को भी अगर आपने जल्दी काम सिखा दिया तो आपका बहुत काम बचेगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। हाँ वही तो यार, सब हाथ बैठाना चाहिए ना। अभी क्या ही करते हो, चलते monkeys are capable I think। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपना मेंटल अटैक जानवरों को, तो कि कार क्यों नहीं बन रहा डिजाइन यार क्या प्रॉब्लम आ गई, क्लाइंट वेट कर रहा है अंदर monkeys ट्रेन कर सकते हैं अपन, सही है। केले में आप उनको पे कर रहे हो, कितना अच्छा है, उनको पैसे चाहिए नहीं मांग ऐसे जो ये वाला यूटोपिया है अभी जानवर में, ये भी सेलेक्टिव है थोड़ा सा कि आप एक ऐसे यूटोपिया करते हो जिसमें जानवरों को आप एग्जैक्टली उसी चीज से पे कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें पैसों से पे करोगे फिर वो भी घोटाला करेंगे। तो एटलीस्ट
मनी से बचे रहेंगे वो, मनी का जो दलदल है उससे। नहीं बंदर तो नहीं बचने वाले, बंदर हमसे बहुत क्लोज है। नहीं केले खाएंगे, प्रॉपर केले खाएंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, केले खाना चाहिए, केले ह्यूमन ने भी खाना चाहिए, सब ने खाना चाहिए। नहीं हमने मतलब ये बता सकता हूँ क्योंकि सिंस एनिमल अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हमारे इंटर्न जैसे हैं वो, तो वो तो अनपेड रह सकते हैं कुछ सालों तक डेफिनेटली, उनको सिर्फ खाना दे दिया तो वो काफ़ी है, वो आते रहेंगे। जानवर काफ़ी लॉयल है। स्किल्स गेट डेवलप्ड, कुछ मंकीज होंगे जो फुल गांड फाड़, मतलब नेवर नो। बड़े से किसी किंग कोबरा या एनाकोंडा को खिड़की साफ करने का काम मिला है। आई थिंक वो शेप होने देना चाहिए, वो जो है वो चीज़ पता नहीं। नहीं जानवर आलसी है ना पहले, वो भी क्या करते हैं, आते नहीं बाहर कभी कभी तो हमारे चक्कर में काम वाम ना दे दे उनको कोई। नहीं ऐसा नहीं। पर कभी तूने सुना है कि बकरियां माइग्रेट कर रही है शहर में काम करने के लिए, गाँव में किसी के पास चली गई कि हमको पाल लो बाकी हमारा खाने का देख लो। बट बकरियां तो यदि इंसानों ने पालना बंद भी कर दी तो भी जंगलों में तो रहेंगी, जंगलों की तरफ इवेंचुअली पहुंच जाएंगी, चरवाहा कोई छोड़ के आ जाएगा बकरियों में। बट कुत्तों का क्या ब्रो, तो शहरों में ही पलते हैं। कुत्ते तो हंटिंग हमारे चक्कर में ही नहीं कर रहे हैं, वरना तो मतलब वो भी किसी, किताबें थोड़ी पढ़ते हैं। हाँ मतलब उसको ज़रूरी है कुछ तो, मतलब ऐसा उनका क्या करोगे आप? कुत्ते तो अपने गाय वाय तो चलो आप मतलब, गाय भी मर जाएंगी भाई, नहीं यार, जिस स्पीड से कार्निवोर्स खाएंगे उन्हें। नहीं गाय तो इनफ है, वो तो बहुत खतरनाक नंबर है अपने पास काफ़ी। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा गाय भी तो इवोल्यूशन में ही आई है ना उसमें, नहीं तो पहले वो गाय तो थोड़ा देर में बनी है नील उससे, गाय होती है, वरना पहले थोड़ी सी हिरन टाइप की थी गाय। नहीं नील गाय जैसी होती थी, जंगली पता नहीं मुझे गाय। काउस, लेकिन एवोल्यूशन पर cows तो तूने है। हाँ तूने एवोल्यूशन कहीं पढ़ा है क्या बुक्स में, और फिक्शन में भी इवन तो एवोल्यूशन जैसे हमने बुक पढ़ी थी मूनबर्ड तो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मूनबर्ड ही नाम था ना उसका। वो तो बहुत ज़्यादा वैसे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मतलब उसमें आप जब चीज़ वैसे नोटिस करते हो कि जैसे आप भी इवॉल्व हुए हो बचपन से अभी तक, आप इवॉल्व हो, बहुत फास्ट एवोल्यूशन है वो भी देखा जाए तो, कंपेयर टू जो बेसिक एवोल्यूशन डीएनए का होता है जिसमें कि सालों लग जाते हैं, हाँ। जैसे सींग आना और ऐसी चीज़ें एक रात में नहीं होती जैसे जो एवोल्यूशन है। ना तो इवेंचुअली वो भी कहीं ना कहीं से तो वही रहेगी। काऊ किससे हुई होगी? काऊ डेफिनेटली किसी हिरन जैसे जानवर से भी होगी, नील गाय को देख के तो मुझे ऐसे लगता क्योंकि है। उसका पेट बड़ा रहता है यार, पेट यूजुअली बड़ा रहता है। बट हाँ हम लोग फंगल नेटवर्क से बाहर चले गए, हम कह सकते हैं कि अर्थ एक फंगल नेटवर्क है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये तो मैं मानने लग गया अभी। हाँ। जिसमें कि उसमें हमारे अंदर ही कम्युनिकेशन में गैप्स आ रहे हैं अभी फंगल नेटवर्क के अंदर ही, क्योंकि हमने अपना अपना नेटवर्क बना दिया है। वो तो है यार, हाँ फॉर श्योर कम्युनिकेशन गैप्स तो अभी आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, पहले कनेक्टेड थे लोग, तो मैं मानता हूँ कनेक्शन नहीं था तो समहाउ कनेक्टेड थे। नहीं कनेक्टेड अभी भी हो यार, वो मतलब फिर वो स्पिरिचुअल लेवल पे बातें करोगे तो वो अलग हो गया। हाँ वो दैट कनेक्शन इज डिफरेंट। स्पिरिचुअल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, फंगल मतलब नेटवर्क मतलब अंडरस्टैंडिंग वो फंगल नेटवर्क मतलब माइंडसेट, जैसे ब्रेन ग्रो कर दिया आपका और आप एवोल्यूशन में अलग चले गए, आपने वो लाइन ही तोड़ दी अभी। नहीं बट वो भी ग्रो होने के तरीके भी लोग लिख गए भाई, कि इस तरह से आप अल्फा मेल बीटा मेल सब तो डिफाइंड है यार। नहीं डिफाइंड अभी तो चेंज हो रहा है, अब तो गामा गामा मतलब ऑलमोस्ट एटलीस्ट कोई थ्योरी तो देखे गया ये बोल सकते हैं, तो वो भी है, मतलब वो भी किया हुआ है लोगों ने काफी, बट अगेन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट है। नहीं जैसे अगर तू अर्थ के लिए बोलेगा, जैसे बड़ा अभी तो वैसे मुझे लगता है हमारा वैसा कोई गोल है, मतलब नियर टू दैट है, बट जैसे गुरुजी का गोल रहता है सेक्रेड गेम्स में, वो तो बहुत ही क्रेजी गोल था, उसको एटम ही बनना था, वापस न्यूक्लियस बनना था उसे तो। बट अर्थ के लिए आपके क्या गोल्स हैं? आपके लिए ओवरऑल आप अर्थ के लिए कोई गोल्स है आपके कि आप चलो आप रहे ना रहे लेकिन अर्थ में ये चेंज तो हो जाना चाहिए? यार मैं तो डेफिनेटली रिवर्स चाहता हूँ, टू दिस पॉइंट वी शुड गो रिवर्स फॉर श्योर। मतलब लकड़ियों के अंदर आप, पेड़ों के अंदर आप वो चीज़ें करो ना यार, जो अब आप यहाँ पर यूटिलिटीज़ बनाते हो, वो सब आपको पता है अब नेचर से भी बन सकती हैं चीज़ें, सस्टेनेबिलिटी इतनी सीख गए हैं लोग, तो अब वापस रिवर्स का आई थिंक टाइम है फ्रॉम 2020। लाइफस्टाइल एंड वर्केबिलिटी ये सब नो डाउट चेंज नहीं होना चाहिए, बट इतने स्मार्ट ब्रेन्स हैं कि वो आराम से नेचर के क्लोज आपको वापस ले जाएंगे विथ योर करेंट लाइफस्टाइल। मतलब आप अपने काम में भी ऐसे कुछ हाँ। देखते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि हम हाँ, थोड़ा कम टेंस्ड हो जाए, फार्म लाइफ हो, टेंशन कम मैं हो। बोलूँगा अर्बन लाइफ से थोड़ी सी फार्म लाइफ तरफ हमको अपनी वो ले जानी है, जो बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी के। ये वायरस अटैक्स तो आ ही रहे हैं अभी WHO के,
तो बट चलो ठीक है, आप विलेज में भी क्या देखना चाहोगे? चलो विलेज बनेगा नो डाउट, वापस बन गया चलो, बट विलेज में कुछ तो चेंजेस रहेंगे इस बार, क्योंकि अभी नया विलेज है, ये मॉडर्न विलेज है, तो इसमें आपको जैसे आप वाईफाई के बिना तो आप सांस नहीं ले पाओगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। वही ना, वही फॉर श्योर। टेक्नोलॉजी भी आप मतलब जितनी, मैं वही बोल रहा हूँ, रिवर्स जाना एज इन ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम वापस से लकड़ी के घर बनाएंगे, लकड़ी के घर एज इन वही ठोक ठाक के काट पीट के वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि अब आप जिस रिस्क के साथ उन घरों में रह रहे थे वो रिस्क तो अब आप आराम से स्मार्टली प्रूव कर सकते हो। यार वो उसने बड़ी मुश्किल से चक्का बना के गया, वो एक आदि मानव, ठीक है, ढूंढता ढूंढता चक्का बना दिया उसने, अब चक्के से कार्स बन गई हैं। बट अब डेफिनेटली ठीक है, फॉर श्योर जो स्पोर्ट्स और वो वाली चीज़ें हैं वो आप रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उनको थोड़ा सा रिवर्स में लेके आओ, टोटल वापस से फ्लिंस्टोन्स वाली कार पे मत आओ, मैं बोलूँगा, है ना। आज हमने टॉपलेस मस्टैंग देखी, बाय द वे। टॉपलेस, हाँ देखो अभी तीन मशीन बच्चे प्लास्टिक बॉडी कम है उसमें, 17-19 साल के बच्चे हाँ। टॉपलेस मस्टैंग, उसको पुलिस ने पकड़ लिया तीनों को आगे जाके हमारे सामने। सही नहीं, ये रेबल्स ही कर पाएंगे ये लोग भाई। सोसाइटी तो वो फ्लो हो रही है, तू जैसे बोल रहा है ना, अपने मॉम डैड भी पढ़े लिखे हैं, बट वो क्रेजीली जो सोसाइटी के उसमें वो पड़े हुए हैं फुल पावर, बट जो रेबल्स हैं वो मे भी कुछ लेके आएंगे ऐसा कुछ बड़े हुए थे। मैं तो वही सोच रहा हूँ, दो ऑप्शन है देखो आपके पास, या तो आप सोसाइटी के लिए कुछ बेड़ा उठाओ या काम करो, उसमें आपको बहुत टेंशन आने वाली है, बहुत लोग आपको नहीं यार, अपने करंट से ही अपने काम जो आप मे बी आप शायद आगे लाइफ टाइम करने वाले हो, या जो भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, वो भी मे बी, मैं तो अपने स्टिक हैबिट में फुल पावर को सोचते ही चलता हूँ यार, कुछ इस तरफ जाएंगी लाइफ स्टाइल तो सही रहेगा यार, क्रेजी थोड़ा काफी फैशन हो गया, ओवर फैशन हो चुकी है दुनिया में, फैशन कम करना। मैं भी बहुत- एक्चुअली हाँ, दुनिया में fashion as in neutral हो गया। मैं एक्चुअली दुनिया में, हाँ ये मेरा वन ऑफ द गोल है जो हाँ। एक्चुअली तू कर रहा है अभी, कि मैं दुनिया से ओवर वाला फैशन जो चलता है ना, गुच्ची और प्राडा और ये, मतलब लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं इस चीज़ पे यार। आई वाज लाइक तुम लोग कुछ और कर लो यार, इतनी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास। थोड़ा सा शाउट आउट ज़्यादा हो गया फैशन में अभी, शाउट डाउन की जरूरत है, या शाउटिंग नहीं, इन म्यूजिक लाइक फैशन का प्रमोशन करने के लिए, जैसे म्यूजिक वीडियोस के प्रमोशन फैशन वाले तो करते हैं, फैशन ब्रांड्स, उनका क्लोथिंग हो गया, वही कह रहा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एडवर्टाइजिंग पे चल रहा है सब, फिर फैशन की एडवर्टाइजिंग म्यूजिक से होती है, तो इस चक्कर में पंजाबी वीडियोस बनते हैं। मतलब हाँ, बिग बॉय टॉयज की कार्स बेचनी है तो वो तो अच्छी चीज़ है, चलो दैट्स ओके। मैं तो कार्स में टोटली ओके हूँ, पंजाबी गानों में कार्स मुझे बिल्कुल पसंद है, लड़कियाँ उतनी पसंद नहीं आती, बट कार्स डेफिनेटली आई एम इन फॉर इट के गाने गाने, जैसा भी ये कार अच्छी लगी मुझे। कार का प्रमोशन हो गया तो आई लाइक वाचिंग दैट इन म्यूजिक में भी, कैसे कभी अरे वो अब नहीं देखता, पहले देखता था, वो भी अच्छा लगता है। कार पॉन, कार एडिक्स। चलिए फिर आज का ये रैप अप करते हैं। जैसे आप अपने माँ बाप के साथ कुछ ऐसे जोक्स है जो किसी के साथ नहीं करते हैं। जैसे मेरे पापा और मेरा एक वो है कि हम दोनों एक दूसरे को ऐसा करके देखते हैं जब भी मिलते हैं, तो ऐसा आईब्रोज उठा के नहीं करते ये वाला, और ब्रो क्या चल रहा है, तो मैं बचपन से करता था। बाबू तो तेरी उम्र क्या है साले।